Today we will do some transfer related programs. These are very important programs from both point of view. So this is your first program. A block of data is stored in memory location starting from C040. Means your a block of data. When we are saying block of data means number of locations depending upon the length. The length of that block is stored in register D. Means you can take any length, means 5 numbers of memory location, 10 memory location, 20 memory location. So that depends upon the length of the block. So that length of the block is stored in the register D, and let's say I have taken 5. So my 5 memory location will be my block of data. So this is starting from C040. So C040 is my first location from this block of data. 41, 42, 43 and C044, since my block length is 5. So this block of data, let's say I have entered 1 in each and every location. What I need to do, write a program to transfer the entire block of data to another memory location starting from memory location C050. So what you have to do in this, or whatever the data is there in this location. So this is your input block where you have to give the data. Means your data is stored in this location. As it is these location data, you have to transfer one by one to another location. So this will be your output block or result block. So first memory location data as it is will copy here. Okay, second memory location data will copy here, and third memory location data will copy here, and same way fourth memory location data will copy here, and same way it will copy here. So this way we can copy one block of data one by one to another block of data. So this is my aim. Okay, now what we have to do for this, in this what we have to do, we have to start from first memory location. We will transfer this data to here. Okay, after transferring the data, we will transfer the next one. But is there any instruction to move from one memory location to another memory location? No, there is no any instruction to move data from one memory location to another. But we have locations or we have, sorry, instructions to move data from one memory to accumulator or from accumulator to memory, right? We have, तो that depends कि हम किससे point कर रहे हैं. अगर जैसे मैं इसको HL से if I am pointing, and if I am pointing with BC register pair, okay, I can take BC. Why? Because D I am using for counting purpose कि how many location I am having in my block. So pair में we have three pairs, HL, BC and DE. So one D is used here. The remaining pair will be HL and BC. So first if I am pointing my input block with HL, right? It is pointed by HL. तो यहाँ से जो डेटा है वो इधर ट्रांसफ़र करना है, तो it should also be pointed by some register pair. So let's say it is pointed by BC. तो now what we have to do, तो we know that HL से जो भी डेटा मैंने पॉइंट किया तो उसको कैसे लिखेंगे, what will be the coding. We have done many times. If I want to access the content of memory, then we need to point the memory by a register pair. So we will use LXI H C040. So what does it mean? That C040 location will transfer in this HL. Means HL is now a pointer, or it is having this address C040. Understood? Same way, I want to address the output location also with the help of BC register pair. So I can use same register, same instruction LXIB C050. Understood? So now this part is over. This is called initialization. See, in your board exam, initialization is also carrying some marks. If you do not clear about the logic, then at least you initialize, you set the counter. So at least you will get 1 or 2 marks for that. One and a half marks definitely you will get for initialization.
Okay, so input is pointed by HL and the output block is pointed by BC register pair. Understood? Now the next is we have to work with the counter also कि मुझे कितने locations चलने हैं. ठीक है? What is the length of the block that will be my counter? I am saying is at a counter because it will keep the track of my all location. तो इसको कैसे बनाएंगे counter? तो काउंटर जो है डी रजिस्टर बोला उसने ब्लॉक ऑफ द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर्ड इन रजिस्टर डी. तो डी में कितने हमें देना पड़ेगा 0 5. ओके, आई राइट डी प्रॉपरली. डी इज योर 0 5. MVID 05. So these three instructions are basically for initialization. HL is pointing to the first memory input block location and BC is pointing to the output memory first location. ठीक है, output block location. Now the thing is to transfer data from one memory to another. Since it is already pointing to the first number, this is also pointing to the first location. So first location data will copy into first location output data. So is there any instruction? As we have already discussed, there is no direct instruction to move from one memory location to another memory location. So what is the solution then? Then the solution है हमारे पास कि जितने भी आपने डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन 13 इंस्ट्रक्शन देखे हैं तो उसमें जो ट्रांसफ़र है वाया एक्यूमलेटर है. जैसे अभी अगर HL से पॉइंट कर रहा है कोई ब्लॉक, ठीक है, कोई मेमोरी को अगर HL से पॉइंट हो रहा है देन वी कैन यूज M टाइप ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, दिस आई नीड टू ट्रांसफर हियर, तो दिस शुड बी वाया एक्यूमुलेटर. तो विच इंस्ट्रक्शन आई विल यूज? मूव A, M, right? So what will happen? That the content of memory pointed by HL register pair will transfer to accumulator. अब ये अगर HL से पॉइंट कर रहा है तो हम M वाले जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ कर सकते हैं. तो what does it means? That the content of memory pointed by HL register pair will transfer into accumulator. And now from accumulator I need to transfer here. So the same instruction can I use for this? No, because M is only used when the memory location is pointed by HL register pair. Since it is output location is pointed by BC register pair, so I cannot use this instruction like move M comma A. This I cannot use. This is wrong. Why? Because M is only used when memory is pointed by HL register pair. Understood? So what is the solution then? सॉल्यूशन क्या हुआ फिर इसका? तो अभी हमारा सॉल्यूशन कोई बता सकता है? एक इंस्ट्रक्शंस होती है, अगर BC को पॉइंट कर रहा है तो हमारी इंस्ट्रक्शंस कौन सी होती हैं? LDAX और STAX रजिस्टर पेयर. ठीक है, these two instructions are used to move the content of memory to accumulator and from memory to accumulator and from accumulator to memory we have STAX register pair. तो कौन सी हम यूज़ करेंगे? LDX किसके लिए यूज़ होती है? फ्रॉम मेमोरी टू accumulator. ठीक है, और STX इसीलिए होते हैं एक्यूमुलेटर टू मेमोरी लोकेशन. ठीक है, तो अब हम ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं ना. तो जब हमने ये वाला कंटेंट जो है A में ले आए तो अब A से यहाँ लाना है, तो वी विल ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी पॉइंटेड बाय विच रजिस्टर पेयर? BC. तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं STAX रजिस्टर पेयर. अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एक ट्रांसफ़र तो हो गया डेटा, वी हैव ट्रांसफ़र फर्स्ट डेटा, राइट. अभी क्या करना है, यहाँ से हमारा एक लोकेशन तो ट्रांसफ़र हो गया, अभी हमें कहाँ जाना है? वी नीड टू गो टू नेक्स्ट लोकेशन. तो वी विल गो टू नेक्स्ट लोकेशन बाय यूजिंग INX H. ठीक है, तो जब हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे HL पेयर को तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 and then again we will increment the output block also. So we will use INX what? B. Very good.
तो INX B we will take, and after that this part is over. ठीक है ना, इंक्रीमेंट हो गया, फिर से क्या करना है, फिर से हमें अब रिपीट करना है सेम ट्रांसफर ऑफ अ नंबर वाया एक्यूमुलेटर, मतलब ये इंस्ट्रक्शन फिर से रिपीट होनी है. तो वी विल राइट अगेन नो. तो व्हाट वी विल डू, वी विल सेट अप अ लूप. ओके, इटरेटिव स्ट्रक्चर जस्ट लाइक इन योर C++, लाइक फॉर लूप. जैसे फॉर लूप सेट करते हो ना, i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस. तो और एंड इन दैट ब्लॉक आप क्या करते हो, आप एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखते हो जो रिपीट होती हैं 10 टाइम. तो यहाँ पर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो रिपीट होनी है 10 टाइम्स. तो वेयर इज द काउंटर, काउंटर इज सेट बाय दिस रजिस्टर MVID 05. तो दिस विल बिहेव लाइक अ काउंटर. कि अभी C++ में हम नॉर्मली क्या करते हैं, काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं लोएस्ट वैल्यू से, एंड एवरी टाइम इट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 जब तक कंडीशन ट्रू है. And here we are setting the counter with the highest number, and every time we decrement the counter. So here what we will write, we will decrement the content of we will decrement the content of register D by 1 with the help of DCR instruction. So DCR D क्या करेगा, it will decrement the content of D by 1. So this will be now decremented by 1, so this will be now at 4. ठीक है. तो हमें चेक कैसे करनी है, वहाँ पे तो चेक करते थे ना फॉर लूप में, फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 1. तो दैट वाज टेस्ट कंडीशन. यहाँ पर टेस्ट कंडीशन कैसे होगी, टेस्ट कंडीशन वी कैन डू with the help of jump instruction. So here we will use jump instruction for that test condition. तो टेस्ट कंडीशन के लिए जंप के लिए क्या चेक करेंगे कि ये ज़ीरो हुआ कि नहीं हुआ. तो ज़ीरो के लिए कौन सी टेस्ट कंडीशन होती है, जंप इफ ज़ीरो या जंप इफ नॉट ज़ीरो. तो विच वन इज सुटेबल फॉर अस, JZ के JNZ. हमें क्या करना है, जंप इफ नॉट ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो नहीं है तो जंप कर जाओ. ठीक है, ज़ीरो है तो स्टॉप कर दो ना, प्रोग्राम ही फिनिश, क्योंकि साथ साथ ट्रांसफर तो हो रहा है. तो आफ्टर दैट डिक्रीमेंट डी वी विल राइट हियर जंप इफ नॉट ज़ीरो, एंड हियर वी विल राइट द लेबल गो अप. ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर जाना है. ऊपर जाने के लिए कहाँ जाएंगे, वेयर वी विल गो, कैन एनीबडी टेल वेयर वी विल गो. ऊपर हम कहाँ जाएंगे, ऊपर हम जाएंगे जहाँ से मुझे ट्रांसफ़र शुरू करना है फिर से. तो मुझे ट्रांसफ़र कहाँ से शुरू करना है, मूव ए कॉमा एम, दैट इज़ द रिपीटेशन ना. फर्स्ट नंबर हमने ट्रांसफ़र कर दिया विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंस्ट्रक्शन. हम सेकेंड नंबर पे आ गए विद द हेल्प ऑफ दीज टू इंस्ट्रक्शन. वी हैव डिक्रीमेंटेड द काउंटर, चेक द काउंटर कि हम लास्ट पे तो नहीं आए, नहीं अभी तो हम 4 पे आए हैं, तो मतलब ये ज़ीरो नहीं है. तो फिर से क्या करना है, ट्रांसफ़र, मतलब सेकेंड नंबर यहाँ जाएगा, and the second number will go with the help of this. Again we will go for next number to transfer third number. So it is decremented by 1 3. तो अब ये 3 हो गया, फिर से हमें ट्रांसफ़र करना है, तो इट विल गो हियर, इट विल चेक द काउंटर, इफ काउंटर इज नॉट ज़ीरो अगेन इट विल गो हियर. तो इट विल ट्रांसफर थर्ड नंबर, अगेन इंक्रीमेंट, तो यू आर एट फोर्थ लोकेशन. यू विल चेक द काउंटर, ये क्या हो गया अभी 2. फिर जंप इफ नॉट ज़ीरो, कंडीशन अभी भी 2 है, वापस गया, इसने इसको ट्रांसफ़र किया और इस दोनों ने इसको इंक्रीमेंट किया. नाउ इट इज़ डिक्रीमेंटेड बाय 1, अभी ये हो गया 1. इफ़ इट इज़ स्टिल नॉट ज़ीरो तो अगेन इट विल गो. अब ये ट्रांसफ़र करेगा लास्ट लोकेशन, फिर ये इंक्रीमेंट करेगा, ये यहाँ जाएगा, और ये पर काउंटर क्या हुआ, डिक्रीमेंट ज़ीरो, काउंटर तो ज़ीरो हो गया. तो ज़ीरो हो गया मतलब ये जो नेक्स्ट लोकेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो इट विल स्टॉप. RST1 स्टॉप योर प्रोग्राम, यू विल कम आउट फ्रॉम द लूप. जैसे ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाती है, जब तक ये ट्रू थी आप लूप में जा रहे थे, और जैसे ये फॉल्स हुई आपका क्या हुआ, आपका जो है लूप क्लोज हो गया, और जैसे ही लूप क्लोज हुआ आप क्या हो गए, लूप से बाहर आ गए. तो अभी आपके लूप में क्या क्या है, तो लूप में आपका दिस इज योर लूप. ठीक है, क्योंकि जंप इन ज़ीरो तो आप यहाँ पर आ रहा है, सॉरी दिस इज योर अप, यहाँ पर आप अप दिखाओगे. तो जैसे ये कंडीशन
ट्रू होती है तो इट विल जंप टू मूव ए कॉमा एन. Clear? So this is your main program, basic, very important program, transfer of a block. I'll show you that program also, कि कैसे इसको लिखना है, how to write that program. See, this is your program. Same I have written here. The now proper coding you can see. Same statement you are having. A block of data is stored. A block of data is stored in memory location starting from C040, and the length of the block is stored in register D. Write a program to transfer the entire block of data to another memory location starting from memory location C050. Okay. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एच एल और बी सी से दोनों को पॉइंट कर देना है. तो यहाँ पर एच एल से पॉइंट हो गया और यहाँ पे किससे पॉइंट हो गया, बी सी से पॉइंट हो गया. राइट, ठीक है. उसके बाद यू हैव टू सेट द काउंटर 0, 5. यू हैव टू सेट द काउंटर 0, 5. तो आपने काउंटर को सेट कर दिया. नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, what was the next instruction? To transfer the content, but there is no direct memory location to transfer the content. तो आप उसको कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, यहाँ से यहाँ पर वाया एक्यूमलेटर, बिकॉज देर इज़ नो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन. तो सबसे पहले व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव टेकन, मूव ए कॉमा एम, मीन्स ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ दिस मेमोरी पॉइंटेड बाय एच एल. तो अगर एच एल से पॉइंट किया तो एम वाले इंस्ट्रक्शंस आप यूज़ कर सकते हो. तो दिस विल ट्रांसफ़र टू एक्यूमलेटर. तो ये जो फर्स्ट नंबर है वो एक्यूमलेटर में ट्रांसफ़र हो गया. राइट. After transferring to accumulator, you have to transfer here at the output which is pointed by BC register pair. तो अगर कोई रजिस्टर पेयर BC या DE मेमोरी को पॉइंट करता है तो हम एक्यूमुलेटर को कैसे एक्सेस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ STX और LDX. तो STX क्या होता है, टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टू मेमोरी pointed by BC register pair. तो STX we have taken, and after that we have incremented the content of H and then incremented the content of B. ठीक है, so that we can move to the next memory location. Understood? So that we can move to the next memory location. Then it will check the counter. It will first decrement the counter after doing first iteration. Means after doing these iteration, this one. ठीक है, आपको काउंटर चेक करना है. काउंटर 4 हो गया, इट विल चेक द काउंटर. इफ काउंटर इज नॉट 0, अगेन इट विल डू द सेम थिंग, मीन्स इट विल रिपीट दिस थिंग. द काउंटर इज ऑल्सो अ रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन, रिपीटेटिव पार्ट होगा इंस्ट्रक्शन जो है काउंटर की, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर रिपीटेटिव स्ट्रक्चर. अंडरस्टूड? So this way you can transfer. This is very important program. बहुत बार, many times it is there in your बोर्ड एग्जाम. ओके, सेम इसी तरह का एक और प्रोग्राम है हमारा, दैट इज same. If I take this letter, a block of data is stored in memory location starting from C040. Length of the block is stored in register D. Write a program to transfer the entire block of data to another memory location starting from memory location C050 in reverse order. If it is in reverse order, ठीक है. I'll show you the statement. I'll not show you the program. I'll show you the statement. See, this is your statement. I'll write it here. Okay, so you can see here it is in reverse order. तो सेम प्रोग्राम है. तो व्हाट शुड बी द चेंज, क्या करना पड़ेगा मुझे, ये भी प्रोग्राम है, रिवर्स में ट्रांसफ़र करना है. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स? रिवर्स मीन्स द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन कंटेंट विल ट्रांसफ़र हियर. ठीक है, अगर यहाँ 1, यहाँ में 2, यहाँ 3, here if I take 4 and if I take 5, then what will happen, this 0, 1 will come here, 0, 2 will come here, means the first will store in the last, second will store in second last, third will store in third last, and fourth will store in
fourth last and the fifth will store in fifth, means reverse of the block. तो जो 0 1 2 3 है, it will be your 5 4 3 2 1. तो what are the changes? सेम प्रोग्राम ट्रांसफर ही है बट रिवर्स में है. तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें? बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट. आपको एक लूप उल्टा चलाना, एक जो स्ट्रक्चर है, पॉइंटर है, वो उल्टा चलाना है. अगर एच एल जो है, वेरी सिंपल, इफ यू पॉइंट एच एल हियर, तो बी सी विल नॉट पॉइंट हियर, वी विल पॉइंट बी सी हियर. ठीक है ना? तो जब ट्रांसफ़र होगा क्या होगा? ये एक्यूमुलेटर में जाएगा और एक्यूमुलेटर से इधर आ जाएगा. तो आई एच एल विल इंक्रीमेंट, तो बी सी क्या होगा? बी सी विल डिक्रीमेंट. So it is incremented by 1 and it is decremented by 1. Clear this point? It is decremented by 1. तो यही दो चीज़ें चेंज करनी है. I'll show you the program. Very simple and easy program. See, this program statement is same, this statement that you have to transfer the block in reverse order. So in this H's you are taking from the first memory location, but now you can see LXIB you are taking from last memory location C050. Oh, sorry, C054. And after that, everything is same. Counter is same. The transfer of data is same. Move M comma A. Here you are transferring into accumulator. And from this accumulator, you are transferring into the memory which is pointed by BC register pair. Now increment this, only this change will come. DCX. Instead of incrementing, now you have to move upward side by decrementing this. And everything is safe. Decrement the counter. If counter is not 0, do the same thing. Only two things you need to change in this program. The counter, one of your blocks should start from end. Okay? And instead of incrementing that block, you have to decrement that pair. That's all. So that is the program is basically in reverse order. You are transferring a block in reverse order. Understood this point? You are transferring a block in reverse order. क्लियर है? ऐसे ही सेम हमारा एक और प्रोग्राम है, इसी से मिलता जुलता सेम, कि ट्रांसफ़र की जगह, ट्रांसफ़र मतलब कॉपी, दैट यू अंडरस्टूड ना. हेयर हमें जितनी भी डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है, it is not simply transferring data, it is basically copying the data. It is copy from one location to another without changing the content of source location. Okay. Now next program is same, related to same, exchange of two blocks. ठीक है? अभी आप transfer of a block किया, transfer of a block in reverse. Now you have to do exchange of a block. Exchange of a block means कि आपके पास अब ये दोनों इनपुट हैं. अगर जैसे मैंने यहाँ 1 1 दिया है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने 2 2 दे दिया. आई एम शेयरिंग हियर 2 2. ठीक है? तो व्हाट यू हैव टू डू, तो बोथ आर इनपुट ब्लॉक. तो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, दीज डेटाज विल गेट एक्सचेंज. तो ये सारे जो 1 है वो कहाँ एक्सचेंज हो जाएंगे? इधर. और ये जो सारे 2 हैं वो किधर एक्सचेंज हो जाएंगे? इस ब्लॉक में. अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो दिस वे यू हैव टू डू दिस प्रोग्राम. तो ये भी इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. कौन सा लॉजिक लगाना है? लॉजिक है स्वैपिंग का. जो स्वैपिंग ऑफ टू नंबर सी प्लस प्लस में करते हैं ना, कि यू हैव गिवन टू नंबर ए बी. हाउ टू डू स्वैपिंग? स्वैपिंग यू हैव टू डू विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल. तो व्हाट यू हैव टू डू, आप सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्या करते हो? ए सी में स्टोर कर देते हो टेम्परेरी वेरिएबल में. फिर सेकेंड नंबर को क्या करते हो? फर्स्ट नंबर में ट्रांसफ़र कर देते हो. एंड देन द फर्स्ट नंबर विच वाज इन सी यू हैव टू ट्रांसफ़र इन रजिस्टर बी. तो यहाँ पे हर एक लोकेशन के लिए आपको क्या करना है? स्वैपिंग. कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो ये 2 विल गो हियर एंड 1 विल कम हियर. तो इसके लिए आपको स्वैपिंग करनी है, बट डायरेक्टली यू कैन नॉट डू, एज वी हैव सीन इन last two examples to program.
कि वी हैव टू डू एवरीथिंग, एवरी ट्रांसफर वाया एक्यूमुलेटर। तो ये जो डायरेक्ट ट्रांसफर सी प्लस प्लस में दिख रहा है ए टू सी, तो यहाँ पर क्या है, ए टू सी में वाया एक्यूमुलेटर जाएगा। ठीक है, जो भी आपको ट्रांसफ़र करने, क्योंकि एक मेमोरी से पहले आप एक्यूमुलेटर में लाओ, फिर एक्यूमुलेटर से यहाँ लाओ और इसको पहले कहीं और स्टोर कर दो। जैसे मैंने इसको कहीं और स्टोर कर दिया, तो इसको स्टोर करने के लिए भी पहले आप एक्यूमुलेटर में ले जाओ, फिर एक्यूमुलेटर से एक रजिस्टर में ले जाओ। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर देखो, अपने HL रजिस्टर, तो जैसे मैं सेम कॉन्सेप्ट ही ले रही हूँ, HL इज़ पॉइंटेड बाय दिस एंड BC इज़ पॉइंटेड बाय दिस, राइट। ठीक है, तो HL और BC रजिस्टर तो यहाँ यूज़ हो गए और D रजिस्टर भी यूज़ हो गया, तो वी हैव ओनली वन रजिस्टर E विद अस। तो E जो है हम एज अ थर्ड रजिस्टर और अ टेम्परेरी रजिस्टर यूज़ कर लेंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, जो ये BC के जो ये कंटेंट थे, यहाँ पे सब में मैंने 02 डाल दिया था, तो दिस 02 फर्स्ट विल ट्रांसफर इनटू E रजिस्टर। तो डायरेक्टली यू कैन नॉट डू, तो ये पहले किस में जाएगा, एक्यूमुलेटर में, फिर एक्यूमुलेटर से वी विल ट्रांसफ़र इन रजिस्टर ई, ताकि हम इसको सेव कर लें। उसके बाद ये हो गया स्टेप, जैसे हमने ये स्टेप किया, C इज इक्वल्स टू ए, C प्लस प्लस में करते हैं ना, C इज इक्वल्स टू ए यहाँ पर। तो फर्स्ट नंबर हमने कहाँ स्टोर कर लिया, C। फिर यहाँ पे क्या है, दो स्टेप करने पड़ेंगे, दो इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन कौन सी यूज़ होगी, BC से पॉइंट कर रहे हैं, A में डालना है तो LDAX यूज़ होगी। ठीक है, हियर वी विल यूज़ LDAX B। तो इससे क्या होगा, कंटेंट ऑफ मेमोरी विल ट्रांसफर टू एक्यूमुलेटर पॉइंटेड बाय BC। और फिर यहाँ से हम A टू E करेंगे, तो मूव कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी, मूव E कॉमा A। तो ये दोनों स्टेप क्या हो गए, ये दोनों स्टेप से ये डेटा तो है E में चला गया, तो E में अब आपका आ गया 2। ओके, उसके बाद क्या करना है, फिर हम सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर में लाते हैं, मतलब ये सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर में लाना है, बट ये भी किससे होगा, वाया एक्यूमुलेटर। तो वाया एक्यूमुलेटर करने के लिए, सिंस इट इज़ पॉइंटेड बाय HL, तो हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, मूव A कॉमा N। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन से हम इधर मूव कर गए एक्यूमुलेटर में। ठीक है, और एक्यूमुलेटर से इधर लाने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, STAX B। तो हम इधर आ गए, तो हमने इससे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गया। तो अब एक एक्सचेंज तो हो गया, ये 2 बचा है ना अभी, तो E के कंटेंट इधर लाने के लिए सीधा, अब इधर लाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इंस्ट्रक्शन है, मूव M कॉमा E, हो गया एक्सचेंज। क्लियर माई पॉइंट, शुड आई एक्सप्लेन अगेन, फिर से वापस एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर हमारा डेटा था 2। ठीक है, तो ये पहले मुझे कहाँ लाना है, एक्यूमुलेटर में। तो एक्यूमुलेटर में कैसे लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ LDAX। उसके बाद यहाँ से किधर लेके आए, E में। ठीक है, तो ये पहला एक्सचेंज हो गया, तो B में क्या हो गया, 02। तो उसके लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ होगा, मूव E कॉमा A। ये हमने सेव कर लिया टेम्परेरी रजिस्टर में, जैसे A की वैल्यू C में सेव करते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर लाना है यहाँ पर। ठीक है, सेकेंड नंबर कौन पॉइंट कर रहा है, HL। तो इधर लाने के लिए कैसे जाना पड़ेगा, वाया एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में इसको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, इसको एक्यूमुलेटर में लाओ। एक्यूमुलेटर में लाने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, सिंपल इंस्ट्रक्शन M वाला, क्योंकि HL से पॉइंट हो रहा है, तो मूव A कॉमा। ठीक है, और फिर एक्यूमुलेटर से इधर लाने के लिए कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज़ होता है, सिंस इट इज़ पॉइंटेड बाय B, तो STAX B। तो ये ट्रांसफ़र हो गया, तो ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो गया, नाउ इट इज़ 1। एक एक्सचेंज तो हो गया। अब ये वाला एक्सचेंज इधर आने के लिए क्या करेंगे, अब E में जो कंटेंट है वो मेमोरी में डायरेक्ट ला सकते हैं, वाया विद द हेल्प ऑफ M इंस्ट्रक्शन, मूव M
कॉमा ई, तो ये 2 जो है इधर ट्रांसफ़र हो गया। तो दिस इज़ योर लॉजिक। तो यही मैंने यहाँ पर किया है। आप देखोगे तो यहाँ तक यही लॉजिक है। पहले एल डी एक्स बी किया, तो ये बी जो है कहाँ आ गया, एल डी एक्स बी 2 पे आ गया, राइट। एल डी एक्स बी क्या किया, इसने एक्यूमलेटर में कंटेंट को लाया। देन मूव ई कॉमा एम ने क्या किया, ई में 2 को ट्रांसफ़र किया। उसके बाद दिस फर्स्ट वी हैव डन दिस पार्ट। उसके बाद बी जो है वो ए में जाता है, मतलब सेकेंड नंबर वी नीड टू ट्रांसफ़र हियर। तो उसके लिए ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज़ की, मूव ए कॉमा एम, और ए के कंटेंट बी में लाए। एंड देन वी फाइनली ट्रांसफ़र दिस मूव ई कॉमा एम। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफ़र, ये एक्सचेंज के लिए आपको ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, यू कैन स्टार्ट दिस कि इसको पहले आप कहाँ ले गए, एक्यूमलेटर में ले गए, और फिर इसको आपने ई में स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको एक्यूमलेटर में ले गए और आपने इसको यहाँ स्टोर कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और उसके बाद जो ये ई के कंटेंट हैं फिर से एक्यूमलेटर में लाने पड़ेंगे और एक्यूमलेटर से इधर स्टोर करना पड़ेगा। तो दैट इज़ एक्सचेंज। एंड देन अगेन ये पहला एक्सचेंज होने के बाद यू हैव टू गो टू नेक्स्ट लोकेशन with the help of INXH and INXB, and then you have to decrement the counter, and if counter is not 0, मतलब हम लास्ट तक नहीं पहुँचे हैं, then again go and stop your program. Getting this point? तो exchange is also very good and important program, बहुत बार आता है ये भी। ये सारे बोर्ड के ही क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। तो एक्सचेंज के लिए भी सेम ट्रांसफ़र ऑफ ब्लॉक वाले ही इंस्ट्रक्शन है। इनिशियलाइज करना, एच एल और बी सी को काउंटर सेट करना, काउंटर रजिस्टर पे को इंक्रीमेंट करना सो दैट यू कैन मूव टू नेक्स्ट लोकेशन, काउंटर डिक्रीमेंट करना, काउंटर चेक करना if it is not 0, only this part you are changing, ठीक है। तो ये एक्सचेंज के लिए सेम, अब उसका कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का अगर आपको क्लियर है देन यू कैन डू दिस बट वाया एक्यूमलेटर ओनली, दैट्स ऑल। So these are 3 programs which you have to prepare for. These are very important and you have to prepare for your board exam. Compulsory, बहुत important है। कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो बहुत आएगा ही आएगा, आता ही है 6 में से। तो कुछ मॉडिफिकेशन वाले भी आते हैं प्रोग्राम। मॉडिफिकेशन मीन्स लाइक दिस कि जैसे अभी ये ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लॉक ही है, जैसे आपका ये प्रोग्राम ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लॉक, ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लॉक ही प्रोग्राम है। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ अ ब्लॉक में अगर आप देखोगे, मैंने बोला टूस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट करो और तब ट्रांसफ़र करो। सेम प्रोग्राम है बट आपको क्या करना है, एवरी डेटा जो भी ये 1 है बिफोर गोइंग टू हियर यू हैव टू परफॉर्म द टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तो जब आपने इसको एक्यूमलेटर में लाया तो बिफोर ट्रांसफरिंग टू हियर टू परफॉर्म टूस कॉम्प्लीमेंट, so two's complement you know how to do that, first to complement the content of accumulator and then increment the content of accumulator, means add 1, perform two's complement, तो one's complement CMA से होता है, add 1 INRA से, then you transfer this। तो सेम ब्लॉक ऑफ ट्रांसफर कॉन्सेप्ट सेम है बट टूस कॉम्प्लीमेंट करके करो, तो इस तरह से आप टूस कॉम्प्लीमेंट करो और ट्रांसफ़र करो, दैट इज़ वन कॉन्सेप्ट। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रांसफ़र द ब्लॉक एंड बाय डबल ईच नंबर, बाय फर्स्ट यू डबल द नंबर एंड देन ट्रांसफ़र। तो डबल करने के लिए आपके पास लॉजिक है, पहले आप उसे एक्यूमलेटर में ले आओ और फिर उसको क्या कर दो, ऐड बाय इटसेल्फ, ऐड ए, तो उससे क्या हो जाएगा, वो नंबर डबल हो जाएगा, देन यू ट्रांसफर। ओके, और वी कैन डू दिस ऑल्सो आरएलसी। तो आरएलसी जब करते हैं तो क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, देन ऑल्सो इट विल अंडरस्टूड। तो दैट आर द डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक। कई बार क्या होता है कि नंबर इज मतलब फिल करना है ब्लॉक को, जो भी आपको नंबर है, जो नया नंबर है उसको फिल भी दूसरे किसी नंबर से भी फिल कर सकते हो, दैट इज़ डिफरेंट प्रोग्राम। बट यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट इट इज़ क्लियर
किस तरह से मॉडिफिकेशन भी आ सकती है, टूस कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म करो या सब्ट्रैक्ट टू करो या डिवाइड ईच नंबर बाय टू। इस तरह से जो भी मतलब एक्यूमलेटर में से जब फर्स्ट नंबर इफ यू आर ट्रांसफरिंग टू एक्यूमलेटर, then do that part and then transfer, that's all. And other logic, पॉइंट करना, काउंटर सेट करना, इंक्रीमेंट करना, दोनों पेयर को काउंटर डिक्रीमेंट करके चेक करना, एवरीथिंग इज सेम, ओनली दैट प्रोसेस लॉजिक थोड़े थोड़े डिफरेंट आते हैं। अंडरस्टूड? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। very simple three programs, very important programs from your board point of view. तो आपको सबको ये अच्छे से करने ही हैं। अंडरस्टूड? तो